এসে গেছেন। এখন অভিমন্যু ভাবছে কি আর জটিলা কুটিলা আদি যে নিশ্চয়ই ভিতরে পূজা হচ্ছে, এইখানে কৃষ্ণ এসে গেছে, এখন এই ধরতে হবে। তখন তাহাকে ধরবার জন্য বড় সাবধানে যখন ভেতরে ঢুকে, ইতিমধ্যে কৃষ্ণ কি করেছেন, সব গৈরিক মাটি গেরু মাটি লেপাবতি করে নিয়েছে, সব তিলক মাটি পুরা শরীরে লেপাবতি করে একটা শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর রাধারানী পূজা করছেন। তখন সকলে একটু দরজা খুলে আড় হয়ে যখন দেখছেন, মানে আরে দুর্গা দেবী সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছেন, সাক্ষাতে রাধারানীর পূজা নিচ্ছেন আর তার সঙ্গে কথা বলছেন, আমরা কি করলাম, আমরা পূজায় বাধা দেয় আর কোনদিন বাধা দেব না। শিল রূপ গোস্বামী পাদ রাধা কৃষ্ণের মিলনে বহু সমস্ত মিলন প্রসঙ্গ লিখে লিখে শেষকালে যত বাধা 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 দিয়ে দিয়ে শেষকালে নিয়ে এসে মিলন করাচ্ছে। এইভাবে রাধা কৃষ্ণের মিলন হয়, পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং রাধারানীর প্রেমের উৎকর্ষ সমূহ প্রকাশিত হয়েছে। এই জন্য শিল জীব গোস্বামী পাদ বললেন কি, এক স্বকীয়া আর পরকীয়া, বলে স্বকীয়া প্রেম অপেক্ষাও যে পরকীয়া প্রেমের গুরুত্ব তাহা রাধারানীর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, অন্য কোথাও নয়। যেমন স্বকীয়া ভাবের মধ্য দিয়ে দেখা যায় বৈবাহিক জীবনে, প্রথম জীবনে প্রথম বিবাহের পরে কয়েকদিন তো খুব মেলামেশা, খুব আকর্ষণ, খুব প্রীতি ভালোবাসা, তারপরে এখন কয়েকদিন পরে আর সেই প্রতি ভালোবাসা থাকে না, বলে এক ঘেমি দূর যা। তারপরে এখন পরস্পরের দোষ দেখা দেখি আরম্ভ হয়ে যায়, সেই প্রতি ভালোবাসা আর থাকে না। তারপরে স্ত্রীকে এখন পতির অধীন হয়ে থাকতে হয়, চিরকাল যখন অধীন হয়ে থাকতে হয় তাহলে আর প্রেমের গুরুত্ব আর স্বাধীনতা বা কোথায় থাকে। ব্রজগোপীগণ কিন্তু তা ছিলেন না, কভু মিলে কভু না মিলে দৈবেরও ঘটন, কখনো মিলছেন কখনো মিলছেন না দৈব ক্রমে, কখনো যোগমায়া কৃপায় যদি সম্ভব হয় তো মিলন হলো, আর নাহলে হাজার হাজার বাধা, সেই বাধার মধ্য দিয়ে তাদের প্রেমের পরাকাষ্ঠা বর্ধিত হয়েছে। ব্রজগোপীগণ কখনো রাধারানী কখনো কৃষ্ণকে দোষ দৃষ্টিতে দেখেন নাই, এই জন্য তাহার প্রেমের মধ্যে গুরুত্ব কোনদিন নষ্ট হয় নাই। আর তাহারা নিজের ঘরের খেয়ে ঘরের উপরে কৃষ্ণের সঙ্গে প্রতি ভালোবাসা করে, এই জন্য তাহাদের যে প্রেমের এত গুরুত্ব, এত মহিমা, সেই রাধারানীর মহাভাব রসকে আস্বাদনের জন্যই কৃষ্ণের যাবতীয় ব্রজলীলা। এই জন্য এই যাবৎ যেখানে রাধারানী তিনি অবস্থান করতেন, এই স্থানেতে সুবল রাধারানী বেশ ধারণ করে ঘরে থাকলেন, আর রাধারানীর সুবল বেশ ধরেই বাছুরকে কোলে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। আর এইখানে কৃষ্ণ নিজেই ব্রহ্মচারী বটু বেশ ধারণ করে রাধারানীকে মানাইবার জন্য আসলেন। এখন জটিলা এসে ভিক্ষা দিতে গেলেন, কিন্তু তিনি নিলেন না, বলে কোন সধবা স্ত্রী ভিক্ষা দিলে নেব। রাধারানীকে অনেক মানিয়ে বলে কয়ে দরজায় পাঠিয়েছেন, তিনি এখন ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছেন, বলে নাও ভিক্ষা না। ব্রহ্মচারী বলে কি তুমি সধবা কি বিধবা জানবো কি করে, মাথার ঘোমটা খোলো, মাথার কাপড়টা একটু সরাইলো বলে কি। তখন বলে কি না, হে রাধে, তোমার এই আটা ডাল চাউল ভিক্ষা করবার জন্য তো আসি নাই, এসেছি তোমার মান ভিক্ষা করবার জন্য, আমার ঝুলিতে তোমার মানটি ভিক্ষা দিয়ে দাও। তখন রাধারানী হাওয়াটা নিয়েই কৃষ্ণের সে মাথার উপরে উড়েল দিলেন, মানে একদম ঢেলে দিলেন, দিতেই আর যায় কোথায়, কৃষ্ণকে তো ভূত বানিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। রাধারানীর মান ভঞ্জন করলেন। রাধারানী আবার তিনি নন্দগ্রামে গেলেন, গিয়ে রান্না করলেন, সকলের সঙ্গে আবার পূর্ববৎ ব্যবহার চলতে লাগলো। এইভাবে নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক লীলা স্থল হলো যাবৎ আমরা সেই রাধারানীর চরণে এসেছি, তিনি যেন আমাদেরকে অঙ্গীকার করেন। এই বলেই নিজ গণে গণ নাম বিধেহি, হে বৃষভানুনন্দিনী শ্রী রাধে, তুমি তোমার গণের মধ্যে আমাদেরকে গণনা করে নাও, তোমার লীলা সমূহ ভাব সমূহ যেন হৃদয়ে জাগরুক হয়, এই
বলেই আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখন ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। उठो ना, कोई खड़े हाथ होना नहीं, बैठो। वाञ्छाकल्पतरुर्भयस्य, बांगाली जे उठो ना, ठेंग फेंक दो एकदम। वाञ्छाकल्पतरुर्भयस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा करावचित पल्लभ बल्लरी के राधा पदांक विलस मधुरा स्थली के राधांग जसमुखम खंगांग बलि के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। बोलो हरि कृष्ण हाथ उठा दो। कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रील गुरुदेव का अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, समझो ये हमारे ससुरालय है, ये अपना निज घर है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन में बताया, अब जब श्रवण कर रहे थे, कभी अगर राधा रानी का कभी कृपा हो, कभी गुरु वैष्णव का ऐसे कृपा कभी हो, सचमुच से कभी हम साधन भजन करें, साधन भजन करते करते कभी हम प्रेम दशा को प्राप्त करते हैं, फिर जोग माया का इच्छा से अगर हम श्रृंगार रस के द्वारा हमारा अगर गोपी भावना हो, तब जोग माया हमें कहाँ पर जन्म देगी वृषभानुपुर में। क्या शादी कहाँ पर होगी? कहते शादी यही होगी किसी गोप के साथ में। और परक्या रूप में हम राधा रानी का निज गण में गणित होकर के हम करेंगे क्या? करेंगे श्री श्याम सुंदर राधा रानी के अनुगत्य में सेवा करेंगे। इसलिए ये जो स्थान है, महाराज 2 दिन पहले बता रहे थे, जय जय ज्वल रस सरबरस सार पर किया भावे जहाँ प्रजत प्रचार। कहते उन्नत उज्ज्वल रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है, यही परकिया रस ही सर्वोत्तम रस है। लेकिन यहाँ इसका प्रमाण क्या है? महाराज बता रहे थे, ये जाबट ही एक अद्भुत एक ठोस प्रमाण है, जो कि परकिया रस ब्रज में था और परकिया रस ही सर्वोत्तम है। यही स्थान ही ये स्थापन कर रहा है। इसको किसी संप्रदाय का लोग यह चीज वो खंडन नहीं कर सकते हैं, ये परकिया रस नहीं था। नहीं तो जाबट किस चीज के जाबट है? राधा रानी को यहाँ पर आने का क्या जरूरत था? राधा रानी तो अगर शादी होती तो राधा रानी नंदगांव में जाती, राधा रानी नंदगांव में नहीं जा करके राधा रानी को यहाँ आने का क्या जरूरत था? यहाँ पर सखियों के निवास की क्या जरूरत था? इसलिए यहाँ पर विशेष करके दूसरे महाराज कहते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग यहाँ पर अक्सर कर नहीं आते हैं, क्योंकि हर संप्रदाय में जो उपासना है वो सख्या रस में उपासना करते हैं। लेकिन केवल हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग ही जो परकिया रस की उपासना करते हैं और परकिया रस को ही सर्वोत्तम रस रूप में स्थापन करते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं यही स्थान हमारे गौड़ीय वैष्णव का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हमारे गुरु जी महाराज जी ये सारे चीज को वहाँ पर पैसा दे करके इस चीज को उन्होंने अच्छे तरह से बनाए, जो चीज हमारे संप्रदाय की परकिया रस को विशेष रूप में पुष्ट करे। ये स्थल का नाम है जाबट है। जाबट का मतलब होता है जो बट वृक्ष, मतलब यहाँ पर पहले एक विशाल बट वृक्ष था, यहीं पर श्याम सुंदर खड़े होकर के बंसी के हुए निनाद की। जी बंसी ध्वनि को सुन करके अभी ब्रज गोपियां श्री किशोर जी को श्रृंगार कर रही थी। अभी सब श्रृंगार हो चुका है, केवल चरण पैर में आलता लगाना ही बाकी था। इतने में श्याम सुंदर ने बंसी बजाई। अभी राधा रानी तो बंसी की तान सुन करके एकदम विभ्रम कृष्ण प्रेम में दीवानी बन गई। अभी राधा रानी को सहन नहीं हुई, राधा रानी भागते भागते यहीं पर आई। जब यहीं पर आई, श्याम सुंदर ने देखा राधा रानी की तो संपूर्ण श्रृंगार है, लेकिन केवल चरण में आलता नहीं पाई थी।
तब स्थान का नाम चाबक है। चाबक एक पेड़ होता है, जिस पेड़ का पत्ते को लेकर रगड़ो उसमें जो रस निकलता है ठीक आलता जैसे। तब श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को श्री चरणों में अपना हाथों में कहते चाबक, जिस बट वृक्ष को नीते चाबक, चाबक रस को द्वारा श्रीमती राधा रानी का चरण को वे आलता द्वारा पहना दिया, इसलिए ये स्थान का नाम है चाबट बा चाबक। और कहते हैं चाबक का और एक मतलब है, जब राधा रानी को चरण में वो चाबक रस पहना है, कभी श्याम सुंदर ने राधा रानी का चरणों को भी कभी बख्य स्थल में धारण किया, इसलिए वो चाबक रस जो श्याम सुंदर का हृदय में लगा है, इसलिए इस स्थान का नाम भी जाबट है। अभी श्रवण कर रहे थे, अभी राधा कृष्ण का शादी का एकदम तय हो गया था, अभी शादी होएगी, लेकिन जोग माया ने देखा अगर शादी हो जाएगी ना फिर के पर क्या रस नहीं रहेगा, ये तो फिर सखिया हो जाएगा, मिलन में जो उत्कंठा वो रहेगी नहीं। इसलिए जोग माया ने यहाँ पर जो कुछ काम होता है बगैर पौर्णमासी को पूछ कर कुछ होता नहीं। तब नंद बाबा अब वृषभानु महाराज पौर्णमासी को पास में उनको जन्मपत्री लेकर गए, शादी को पहले मिलाते हैं जन्मपत्री। जब मिलाने के लिए गए तो पौर्णमासी ने कहा देखो ये लड़की मंगली है, अगर ये लड़की मंगली है, अगर इसको कृष्ण के साथ में शादी कराओगे ना जिंदगी भर झगड़ा करेंगे, ये दोनों में बनेगा नहीं, इसलिए शादी मत कराए करो। फिर पूछे वृषभानु महाराज फिर क्या किया जाए, देखो ये चावट में एक आयना घोष नामक एक लड़का है, वो भी बड़े धनी घर के लड़के हैं, इसलिए अब अपना लड़की को वहीं पर शादी करा दो। तो बोले ठीक है वहीं पर शादी कराएंगे पौर्णमास के आदेश से। अभी राधा रानी का जो पता चला मेरी शादी श्याम सुंदर से नहीं, तो राधा रानी श्याम सुंदर से मिलते हैं, तो उन्होंने पूछा श्याम सुंदर मैं क्या सुन रही हूँ, कहते क्या सुन रही हो, कहते मेरे क्या शादी ये आयना घोष को साथ में होने जा रहा है, अभिमन्यु को साथ में। तो श्याम सुंदर ने कहा देखो किशोर जो तुमको सब कुछ पता है, हम तो प्रिया प्रिय तुम रूप में नित्य विद्यमान है, लेकिन अगर हमारा शादी हो जाएगा तो जो मिलन का जो उत्कर्ष है वो रहेगा नहीं, वो सखिया हो जाएगा। अभी महाराज बता रहे थे ना जो सखिया स्त्री है पहले तो उसका मुख चंद्रवदनी लगती है चंद्रमुखी, कुछ दिन के बाद में उसको मुख लगने लग जाते सूर्यमुखी, कुछ दिन के बाद फिर ज्वालामुखी, फिर तो घर में लड़ाई फिर झगड़ा होने शुरू हो जाती है। इसलिए ये सखिया भी ये दोष है, लेकिन जो परखिया में वहाँ पर परखिया में हर समय पत्नी का मुख हर समय चंद्रमुखी लगती है, हर समय नहीं लगती है, लेकिन यह चीज ये संसार के लिए हाँ, लेकिन वह तो हाँ कहती है संसार में जो परखिया जो प्रेम है यहाँ पर तो बहुत गति है, ये नरक का कारण है, लेकिन भगवत जगत के लिए वहाँ पर केवल यही चीज को देखना होता है श्याम सुंदर का प्रति हमारा कितने आकर्षण है, हाँ यहाँ पर कितने आकर्षण है। इसलिए बोले हे राधा जो आपको ये बात सब कुछ पता है, हम तो नित्य निरंतर विद्यमान है, केवल परखिया पुष्टि के लिए हम ये सब काम किया। तब भी श्याम सुंदर ने कहा देखो जब तुम्हारी शादी होगी ना वो आयना घोष मेरे मामा लगते हैं, मैं उनको गोद में बैठ जाऊंगा, और जब मंत्र पड़ेगा शादी का समय में लड़की को दान करना होता है उसी समय मैं गोद में बैठ करके बाढ़ हूँ मतलब मैं स्वीकार कर रहा हूँ मैं बोलता रहूंगा, और तू जब माला भी डालोगे ना मैं अपना सिर आगे बढ़ा दूंगा, और तू माला उसको नहीं दे करके माला तू मुझे दे देना, पर शादी मेरे साथ हो जाएगी मेरे। और देखो कि जो आयना घोष है इसलिए शादी से ही वो नपुंसक हो जाएगा, उसको पुरुषत्व तो नहीं रहेगा, हाँ। और जो आयना घोष है और कोई दूसरे नहीं, वो कौन है, कहते साक्षात मैं हूँ, एक स्वरूप रूप में मेरा एक प्रकाश ही ये आयना घोष है, ये आयना घोष कोई और दूसरे नहीं। इसलिए तब उन्होंने सारे बात बोल दिए। तब वृषभानु महाराज ने उनको बेटी के लिए यहाँ पर सुंदर राजमहल बनाया, इतने सुंदर उन्होंने राजमहल बनाया, क्या दिव्य राजमहल वर्णना करते, ऐसे उसमें तोता बनाए, ऐसे राजहंस बनाए, ऐसे उन्होंने मयूर बनाए, आकाश में जब राजहंस मयूर उड़ते हुए जाते थे लगता था राजमहल में साक्षात रूप में शायद मयूर हुए, एक दूसरे को चुंबन खाया करते थे, मतलब इतने कलाकारी से
भगवान महाराज श्री राधा रानी के लिए इस पर विशाल राजमहल यहीं पर उन्होंने बनाए। फिर जब शादी हुई ठीक वैसे हुआ, लेकिन लोगों ने हंसी करते हुए ये चीज को उड़ा दिया, ये चीज को किसी को पता नहीं चला। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान बहुत कुछ लीला किया है। चमत्कार चंद्रिका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 4 कथाएं दी हैं, वो पूरा के पूरा यहीं पर अभी प्रेम समुद्र की बात श्रवण कर रहे थे, कैसे श्री श्याम सुंदर आकर के राधा रानी के पास में अपना निंदा स्वयं कर रहे हैं। कल श्याम सुंदर बेकार कृष्ण से प्रेम कर रहे हो। हमने 2-3 बार देखा है, कृष्ण तो मुंह से बोलते हैं तुम मेरा सबसे ज्यादा प्यारी हो। अगर सबसे ज्यादा प्यारी है, तुम कहीं से बिलबिलाते हुए दुखी करते हुए कृष्ण क्यों चले जाते हैं? ये केवल मुंह से बोलते हैं। श्याम सुंदर स्वयं अपना निंदा कैसे राधा रानी के पास बोलते हैं, लेकिन राधा रानी मानते नहीं। तब राधा रानी प्रेम की वैचित्र वर्णना करते हैं। श्याम सुंदर मुझे जो छोड़ करके जाते हैं तत्वतः विप्रलंब रस आस्वादन कराने के लिए। विप्रलंब रस को द्वारा ही पी मतलब विशेष पूर्वक, प्र मतलब प्रकृष्ट रूप में, लंब मतलब मिलन है। ऊपर से दिखता है जैसे अलग है, लेकिन कहते जो मिलन रस में केवल सामने एक जगह में ही प्रियतम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन विप्रलंब रस में जहाँ नेत्र बड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। सर्वत्र उन्होंने कृष्ण 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 कृष्ण, सर्वत्र उनको कृष्ण कृष्णमय दिखता है। इसलिए विप्रलंब रस में यह वस्तु है। तब श्याम सुंदर स्वयं कहते हैं तुम बोलती हो तुमको कृष्ण इतना प्यार करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? क्या श्याम सुंदर यहाँ पर प्रकट करा के दिखा सकते हो? तब मैं मानूंगी श्याम सुंदर तेरे को विप्रलंब रस आस्वादन करते हैं। कद मैं नहीं मानती हूँ श्याम सुंदर तुमको प्रेम करते हैं। प्रमाण क्या है? श्याम सुंदर को बुला सकते हो? ठीक है, श्याम सुंदर को बुलाती हूँ। तो राधा रानी स्वयं जोगिन बन करके आंख बंद करके, हे श्याम सुंदर, ये गंधर्व भी मानना नहीं चाहती है सचमुच से आप मुझे प्यार करते हो, ये किसी तरह से मानना नहीं चाहती हो। हे श्याम सुंदर, अगर सचमुच से आप मुझे बहुत प्रेम करते हो, आप यहाँ पर स्वयं प्रकट होकर के यह चीज को प्रमाणित कर दो, आप मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। जब राधा रानी सब जोगिन बन करके बैठती है, वो तो स्वयं श्याम सुंदर थे ही, वो तो अपना निंदा कर रहे थे राधा रानी कितना प्रेम मेरे प्रति है। इतने में श्याम सुंदर जितने कपड़ा फपड़ा, आज श्यामा सखी बने हुए थे, सब कपड़ा फपड़ा फेंक फाक दिए और फेंक फाक करके वहीं पर ही श्याम सुंदर स्वयं प्रकट हो गए। जब राधा रानी आंख खोलती है, कहती वो कहाँ गई? देखा श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोले वो जो अप्सरी थी गंधर्वी, वो गई कहाँ है? गई कहाँ जो मानना नहीं चाहती थी? देखो श्याम सुंदर को स्वयं यहाँ पर हमने प्रकट कर दिया है। इसलिए सब लीला यहीं पर कहते यहाँ पर श्री ये जटिला और कुटिला। कहते जटिला कुटिला कौन है? ये अभिमन्यु कौन है? जटिला मतलब होता है जट पकाना और कुटिला मतलब होता है कूटनीति। क्योंकि मिलन अगर आसानी से हो जाए तो फिर उसमें उत्कर्ष नहीं रहता। इसलिए जोग माया ने उनको सांस और ननद को जटिला और कुटिला बना दिया। मतलब मिलन जैसे सहज में नहीं हो, मिलन जैसे कठिन से हो। जो चीज कठिन से मिलन होता है वो चीज को उत्कर्षता रहता है। इसलिए ये जटिला कुटिला को उन्होंने प्रकट किया है। जैसे राधा रानी को क्या बात है, कहाँ जाती हो, क्या करती हो, कहाँ गई थी, हर समय बाधा है कृष्ण को साथ में मिलन कराने के लिए। कहते अभिमन्यु कौन है? कहते वृथा अभिमान है, जो केवल मानता है मैं राधा रानी का प्रियतम हूँ, जो वृथा अभिमान है। इसलिए यहाँ पर जटिला कुटिला को सब समय सह गए। जटिला कुटिला ने कभी राधा रानी को बोल कर गए, खबरदार मैं कहीं थोड़ा दूर गांव में जा रही हूँ, तुम लोग सावधान रह कर देखना, कृष्ण कभी कभी ग्वाल बालों को साथ में आ करके घर में घुस करके माखन मखन खा लेते हैं। खबरदार तुम लोग देखते रहना, जैसे श्याम सुंदर यहाँ पर आकर के मक्खन नहीं खा पाए ग्वाल बालों को साथ में। जटिला कुटिला चली गई। राधा रानी को और ललिता विशाल को पता चला जटिला कुटिला भी बड़े दूर गांव में गए हैं, आने में बहुत देर होगा। इसलिए हम श्याम सुंदर यहाँ पर बुला लेते हैं और लीला करते हैं। तो इतने में श्याम सुंदर को खबर दे करके यहाँ पर बुला लिया और यहाँ पर श्री राधा और कृष्ण डायरेक्ट मिल रहे थे। लेकिन एक जटिला कुटिला जो कहीं गए थे, किसी कारण से वहां पर काम नहीं हुआ था, आधा रास्ता से लौट कर आ गए। लेकिन वो तो सोच रहे थे कृष्ण गए बड़े दूर में, अभी आने वाले नहीं। लेकिन झट जब यहाँ पर आ गए, ये सोच नहीं पा रहे थे कभी जटिला कुटिला आ जाएगी। आकर के देखा श्याम सुंदर राधा रानी दोनों मिल रहे हैं। जटिला कुटिला तो इतने क्रोधित हो गए, धूर्त बदमाश तू यहाँ कैसे आ गया? बहू को गाली बकने लगे, तू क्या कर रहे हो यहाँ पर रह करके? अभी दूसरे समय तो जटिला कुटिला और हमारी राधा रानी ललिता विशाखा, ललिता बड़े चतुर है,
और कभी बहाना बना लिया करती थी इधर उधर बोल करके, लेकिन अभी रंगे हाथों से डायरेक्ट पकड़ गए कृष्ण राधा रानी मिलते हुए। अभी राधा रानी सखियां सब डर गई, अभी क्या होगा, अभी तो हम संपूर्ण रूप में पकड़े गए, हमारे पास में और कोई दूसरे कोई उपाय नहीं। लेकिन राधा रानी तो सर्व लक्ष्मी भाई खुद सर्व चतुर है, झट राधा रानी अपना बात को बना देती है। कहते तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, कहते ये कैसे आ गया, तू कैसे मिल रहे थे कृष्ण से, बोले मैं थोड़ी कृष्ण से मिल रहा था, तुमने बोल कर गई थी कृष्ण यहाँ आकर के मक्खन चोरी नहीं कर खा नहीं ले जाए, इसलिए मैं तो बड़े कड़ी पहरादार दे रही थी और इसलिए मैं कृष्ण से थोड़ी मिल रही थी। मैंने ये देख रही थी कृष्ण मक्खन खाया कि नहीं, मैंने बोला कृष्ण तुमने मक्खन खा लिया, कृष्ण मानना नहीं चाहता तो मैं मक्खन खाया, अब इसको मुंह में सूंघ करके देख रही थी ये मक्खन खाया कि नहीं, इसलिए मैं उसका मुंह को सूंघ रही थी, मैं थोड़ी उससे मिल रही थी। देखो बात इतना जल्दी उन्होंने बदला दिया, चटला तो सच, अरे सचमुच से मेरी बहुत अच्छी है, ठीक सचमुच से और ठीक से देख रही थी, पूरा बात के बाद बदला दिया। इसलिए यहाँ पर उन्होंने ऐसे ही बहुत सारी लीला किया है, अगर कथा बोलने जाएंगे तो 2-3 घंटा लगेगा, इतने कथा यहाँ पर है। इसलिए यह स्थली हमारे गौड़ीय वैष्णव की सर्वोत्तम स्थली है। हाँ, हम लोग यहीं पर आए, ये हमारा अपनी घर है। अगर कभी गुरु वैष्णव का कृपा होएगी, कभी राधा रानी की कृपा होएगी तो यहीं पर हमारी शादी होएगी। कहाँ पर, जहाँ पर प्रभु प्रकट ब्रज में जहाँ जन्म ग्रहण करेंगे, और यहीं पर राधा रानी का गढ़ में गणित होकर के श्री राधा और जुगल सारकर की हम सेवा करेंगे। इसलिए राधा रानी का चरण में आए, हम लोग प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद करें, उनका गढ़ में जैसे कभी गणित हो सके। बोले श्री राधा रानी की जावट की। अरे भाई पंडा जी से प्रसाद भी ले जाओ और पैसा भी ले जाओ। So, Srimati Shalvarani Devi, she wants to finish the second half of her presentation. So as everyone is streaming out of here, I guess it's still possible she can go underneath the tree there and she can tell this pastime. Shalvarani, if you go over there, while everybody is going this way, then you can finish the pastime. I was very happy that Rasananda Prabhu practically finished that Leela. That is, the demigod disguised Krishna asked or interrogated Radharani that I don't believe you that you understand Krishna's mind and Krishna understands yours because you were weeping so bitterly. She said, well, that's another thing. I just can't help it. It's separation. Then she said, some people think that Krishna understands my mind and I understand his. But actually that's totally false. That could be true if we were two separate people, but we're not. Just as in one pond, you have a root of a lotus, and there's two stems coming from that one root, and 2 lotus flowers come from that one root, one yellow and one blue. So me and Krishna, his yellow clothes is my color, and my blue clothes is his color. So actually we're one soul in 2 bodies. And then he said, well, if that's actually true, then if you meditate on him right now, then he'll be here, because you're one soul in 2 bodies. So she began to meditate like a yogini, and at that time, Krishna threw off his demigoddess clothes, told Lalita and Vishaka, and then he embraced her, and she woke up and she was so happy. It worked, it really worked. And then she said, where's that Sati? Where's that demigoddess? And he said, I don't believe you that there was a demigoddess. He said, yes, there really was. He said, okay, then let's go look for her. So they went to the house and enjoyed more pastimes. So then very quickly, another pastime. This is also done under Srila Gurudev's guidance. Even in the middle of the picture, he told me, Krishna's arm should look like an elephant's trunk, getting thinner as it goes towards the wrist. So one day in Yagat... Those with buses, you better go. Those with cars can stay. Okay? Yes.
So, Those who care about buses more than about Harikatha can go right now. Those who want to walk back, stay. And Krishna tried every usual way to break her mind, but it didn't work. So he came with Kundalata, who's his cousin, girl cousin, and she introduced this girl singer from Mathura to Radharani. She said, she's a singer from Radharani, and Brihaspati came from the heavenly planets, and he saw her, that she was able to repeat his singing better than his own students. So for 1 year he stayed on earth in Mathura and trained her. Then he went back to heaven, and now she's become the best singer in Mathura. So Radharani said, okay, please sing something. So Krishna sang so beautifully that all of her mind went away and her heart melted. Lalita, Vishaka, and the other gopis, their hearts also melted. And then Radharani told Krishna, but she didn't know it was Krishna yet. She told Krishna, I want to reward you. Rati Manjari, go and get one of my ornaments to put on Krishna. At that time, when she was putting the ornament on, she noticed that this touch is very familiar. It gives me a certain feeling that only one person gives me. And at that very same moment, Lalita whispered in her ear that that's none other than that Cheetah Sham. So then they all had by winking and smiling, because that's how they speak to each other, they all figured out a conspiracy. She said, why should I give only one ornament? I should give you a whole outfit. So we'll take off your clothes and we'll give you my whole set of ornaments and whole garments. And Kundalata and Krishna immediately got nervous. Well, it's time to go. She was actually very shy. So then Radharani and her gopis said, no, we're old girls, don't need to be shy. So then they grabbed Krishna and took off his choli and two kadamba flowers fell on the floor. And you'd think that Krishna would, and everybody laughed and clapped, you'd think that he would say, okay, I lost. But no, he just got indignant, picked up the flowers, put them back, walked away, went to Jatila and began wailing, and told another lie of who he was, that he's run around his girlfriend from Varsana, and now she's not speaking to him, he doesn't know what to do. And said, unless you forgive her and embrace her, then I'm going to be very upset. So Radharani said, no, it's not me who's mad at her, it's Kundalata. Now the gopis can embrace Krishna, but Krishna's cousin, girl cousin, would never embrace because they're related. So Jatila said, well, if you're, okay, Kundalata, if you're not angry at Krishna, then let's say you embrace it. But she wouldn't. So then Jatila was mad at Kundalata and Krishna, so then they embraced him like that. So then Jatila was pleased, she was pleased with Radharani. She said, okay, the two of you should stay together tonight. You haven't seen each other for many, many years. You should stay in my house tonight. And that was the end of the story. And those who have cars, just 2 more minutes. If anybody's just in cars. Another time.